Assalamu alaikum and welcome to 100 MCQs on Gulliver's Travels. So these are detailed MCQs which may help you in all your teaching career. So these 100 MCQs are about Gulliver's Travels written by Jonathan Swift, and this is a fantasy tale for kids and a bitter satire for humanity. So Gulliver's Travel was written by Jonathan Swift. So Jonathan Swift was a prose writer in the age of Pope Alexander Pope का friend था ये. It is a bitter satire on humanity. Like both सख्त किस्म की satire की उसने. So these videos, these MCQs are already available on my channel. If you miss it in case, these are available there. But definitely without interpretation, यहाँ पे अब दोबारा जब मैं इसको कर रहा हूँ तो ये हम उसे discuss कर रहे हैं in MCQs को साथ साथ. So Gulliver's Travels is also an allegory as well as an irony. So allegory क्या है basically, जिसमें आप लिंक करते हैं किसी historical incident से किसी चीज को यानी represent करवाते हैं. Irony है when there is difference between what is said or what is expected or what happens and what is expected. So Gulliver's Travels allegory भी है और irony भी है. Lemuel Gulliver's first travel to Lilliput. So first उसका voyage Lilliput में है. Gulliver was a doctor by profession. So उसका profession doctor था, medical doctor. He spent most of his time in water. He was fond of traveling. तो बहुत ज़्यादा इसने सफर किया. Gulliver decided to settle in London to practice medicine. So अपनी बेहतर कारोबार के लिए वो लंदन में सेटल होता है. The ship taking Gulliver to south for his first voyage was called Antelope. तो पहला ship Antelope था जो कि उसको साउथ की तरफ ले जा रहा था. William Pritchard was the captain of the boat in voyage 1. Gulliver was given the role of surgeon on first voyage because आपको पता कि voyages जो थे बड़े time consuming होते थे और months, years लग जाते थे वापस आने में, तो एक सर्जन को होना जरूरी था. So he was a surgeon on ship. Antelope was destroyed and Gulliver was swimming to a shore, so he had to swim to the shore. बाकी लोग मर गए, ये तैरता हुआ कहीं ना कहीं थक के टूट के एक साहिल तक आ गया. So Gulliver was tired and he slept. When he woke up, he found himself chained. कि वो बंधा हुआ था. There were dwarfs who took everything from him. बोने थे वहां पे जिन्होंने इससे सारा सामान ले लिया इसका. Only spectacles remained unnoticed in his pocket. सिर्फ इसकी glasses इसकी जेब में रह गई. Gulliver was taken to the metropolitan city. इसे यहां से मेन सिटी में ले जाया गया. Lilliputians gave the title of Man Mountain, Quinbus Fleston. ये अपनी जुबान में उन्होंने Man Mountain इसकी हाइट देखते हुए इसको टाइटल दिया. लिलीपुट की जो एक्टिविटीज थी उसमें सिल्कन थ्रेड देते थे, रोप डांसिंग होती थी, जिसको इसने देखा जो कि पॉलिटिकल सटायर है. बिग इंडियंस जो थे वो कैथोलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो गलीवर ट्रेवल्स में वो लोग जो अंडे को बड़े हिस्से से तोड़ते थे, they were called big Indians, which is an allegory for Roman Catholics. Small Indians से they stand for Protestants, और इनकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी आपस में. Gulliver learned their customs, languages, rule. Gulliver की जो वाइफ थी इंग्लैंड में, उसका नाम मैरी था. जो Lilliputians से they were 5 to 6 inches tall. Gulliver जो है वो से 6 स्कॉलर्स को हायर किया जाता है लैंग्वेज सिखाने के लिए. इतना बड़ा Gulliver जो बोनों से डर के रहता है, सबमिसिव हो जाता है. So this is irony. Lilliputians को Gulliver की वजह से फतह मिलती है क्योंकि ये उनके शिप्स को खींच के ले आता है, फ्लीट खींच लाता है बेल्फेस्क्यू के. सो बेल्फेस्क्यू रिप्रेजेंट्स
England, France, and Lilliput represents England. दो बोने, दो पिग्मीज या डॉफ्स गलीवर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, सो दे आर फेल्मनैप एंड बोलगुलम. लिलिपुशियंस को यह था कि अगर वो इस जायंट को फीड करते रहेंगे तो दे विल सून गो बैंकरप्ट. द एम्परर ऑफ लिलिपुट represents George I, the king of England. The princess of Lilliput represents Queen Anne, जो कि जॉर्ज वन से पहले किंग थी, क्वीन थी इंग्लैंड की, मैरी की सिस्टर. Lilliput represents England and Bulfesque represents France. The sea between Bulfesque and Lilliput represents the English Channel, जो कि इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है. Rope dancing represents parliamentary tactics. One of the king's cushion is one of George I's mistresses. तो बेसिकली हुआ क्या था कि विलियम ऑफ ऑरेंज जो था वो ही डाइड. उसके बाद उसकी वाइफ जो थी, ये हमने डिस्कस किया था जैकोबाइट्स में कि जेम्स वन को लोग तंग आ गए, उन्होंने विलियम को बुलाया. विलियम केम विद हिज वाइफ मैरी, जो कि जेम्स टू की बेटी थी. जेम्स टू के खिलाफ थे लोग. सो जेम्स टू जब वो आए यहाँ पे, यानी इंग्लैंड के लोगों के कहने पे 15,000 की आर्मी लेके, सो जेम्स टू वहां से फ्रांस भाग गया. फिर इसने रिवॉल्ट्स की जिन्हें जैकोबाइट रिवॉल्ट कहा जाता है. इसी बेस पे जैकोबाइट पीरियड भी था लिटरेचर में इंग्लैंड में. सो उसके जाने के बाद विलियम ने रूल किया, विलियम मर गया. फिर मैरी ने रूल किया, मैरी के बाद क्वीन एन ने रूल किया. क्वीन एन के बाद उसके 14 बेबीज हुए जो कि चाइल्ड बर्थ में, इन्फेंसी में मर गए. सो शी डाइड हेयरलेस. अब सवाल था कि हम किसको किंग बनाएं. सो चूंकि फैमिली में से होना था किंग, तो दूर दराज कहीं हैनोवर में इनको लगा कि दूर इनका किसी खाला फूफी का बेटा जॉर्ज वन है. सो जॉर्ज को ये बुला के लाए, जिसको जर्मन लैंग्वेज आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी. एंड ही केम विद 2-3 मिस्ट्रेसेस. उसकी मिस्ट्रेसेस भी उसके साथ थी. उसने फिर अपने आसपास करीब इंग्लिश पीपल का एक कैबिनेट बना ली, जहां से ये काबीना का सिस्टम शुरू हुआ. और उसमें जो फर्स्ट अमंग इक्वल था, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, रॉबर्ट वॉलपूल, जो कि 1721 से 1742 तक 2 दफा इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर रहा. तो यहाँ से बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू होता है. सो वन ऑफ द किंग्स क्वेश्चन, ये जो रोप डांसिंग है, रोप डांसिंग गलीवर देखता है कि बोने एक रस्सी के ऊपर लटक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और जो अच्छा डांस करेगा उससे ज्यादा ओहदे मिलेंगे. तो ये बेसिकली सटायर है पॉलिटिकल सिस्टम पे इंग्लैंड के, कि लोग पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स, करप्शन यूज करते थे ऊपर जाने के लिए. कुछ बोने नीचे गिरते थे जो कि मर भी जाते थे, यानी जिनको पॉलिटिकल सीट से हटा दिया जाता था. ये मीनिंग है इसका. और जो मिस्ट्रेस है बेसिकली, इसमें जो फिल्म नैप हमने पढ़ा, वो बोना जब नीचे गिरता है, बेसिकली वो रॉबर्ट वॉलपूल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब नीचे गिरता है तो नीचे एक कुशन पड़ा होता है जिसके ऊपर वो गिरता है और उसकी बचत हो जाती है. सो वो कुशन जॉर्ज वन की मिस्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि एक मतलब रॉबर्ट वॉलपूल की हुकूमत खत्म होने वाली थी एज प्राइम मिनिस्टर, तो उसने किंग की मिस्ट्रेस के जरिए सिफारिश करवाई और बच गया. फिल्म नैप represents Robert Walpole, who was English Prime Minister. High heels and low heels, ये दो पार्टीज थी वहां पे. So high heels means high church parties, यानी Tories, जो कि इंग्लैंड की पॉलिटिकल पार्टी थी. And low heels represents low church parties, यानी Whigs. Big Indians कैथोलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल प्रोटेस्टेंट को. गलीवर वहां पे एक आग बुझाता है, जो कि पैलेस में आग लग जाती है तो गलीवर उसे यूरिन करता है और उस आग को बुझा देता है. आफ्टरवर्ड्स उस पे इल्जाम लगते हैं कि इसने गलत हरकत की. सो दैट वाज राइट इक्वल टू राइटिंग अ टेल ऑफ टब, जो कि बेसिकली रिलीजन के ऊपर इसने सटायर की और इसको बंद कर दिया गया जेल के अंदर. और वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन में उसके ऊपर भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको. गलीवर की इम्पीचमेंट जो हुई इसके बाद, वो इम्पीचमेंट ऑफ बोलिंगब्रोक, जो कि अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड था, उसकी इम्पीचमेंट को रिप्रेजेंट करती है. बोलगुलम represents the Earl of Nottingham. सिल्कन थ्रेड्स जो दिए जाते थे वहां पे, सो ग्रीन सिल्कन थ्रेड था, रेड था, ब्लू था, जो कि गलीवर ने देखा वहां पे बोनों को मिलते हैं. सो ग्रीन वाज इनिशियली गिवन टू क्वीन एन, रेड वाज गिवन टू जॉर्ज वन, एंड ब्लू वाज गिवन टू रॉबर्ट वॉलपूल. इसीलिए उसे सर
ब्लू स्ट्रिंग भी कहा जाता है। सो गलीवर्स अफेयर यानी वॉलपूल जो है उसकी वाइफ का एक अफेयर होता है, तो और एक और अफेयर बॉलिंगब्रोक का डचेस ऑफ कैंडल के साथ था जो कि वॉलपूल की फ्रेंड थी। तो यहाँ पे बेसिकली बोने इल्जाम लगा देते हैं, यानी फिल्म नैप इल्जाम लगा देता है कि गलीवर का मेरी वाइफ के साथ चक्कर चल रहा है। अब वो 6 फुट का गलीवर और 6 इंच की उसकी 5 इंच की वाइफ, तो क्या चक्कर चल रहा है इनका। लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है वॉलपूल की वाइफ के एक अफेयर को। बर्ट्रैंड रसेल जो एक सेक्रेटरी होता है, वो लॉर्ड कैटरेट को रिप्रेजेंट करता है। गलीवर जो वॉर खत्म कराता है फ्रांस और इंग्लैंड की, वो बॉलिंगब्रोक ने वॉर असल में खत्म कराई थी इंग्लैंड और फ्रांस की ट्रीटी ऑफ अटचेट के जरिए। लिलीपुशियंस सजेस्ट करते हैं गलीवर के साथ क्या किया जाए। फाइनली वो कहते हैं इसे ब्लाइंड कर देते हैं। डॉफ्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इंसान कितना छोटा है बेसिकली अपने, यानी उसके यानी एम्स देखो कितने बड़े हैं और खुद उसकी जात कितनी छोटी है। किंग ऑफ ब्रॉबडिंग-नैग जो कि सेकंड वॉयज है, उसमें ब्रॉबडिंग-नैग किंग वो बातें करता है जो कि गलीवर की अपनी मुंह की बातें, जो कि स्विफ्ट की बातें जो स्विफ्ट कहना चाहता है। तो गलीवर सेकंड वॉयज में एक जायंट उसे पकड़ लेता है और नाउ गलीवर इज अ डॉफ इन फ्रंट ऑफ दोज जायंट्स। एक एग्जीबिशन में इसको ले जाया जाता है जहां पे वो करतब करता है लोगों के सामने। रोज इतने करतब करने के बाद उसकी हेल्थ शैटर हो जाती है। गलीवर को क्वीन को बेच दिया जाता है। गलीवर के साथ बहुत सारे मिस एडवेंचर्स होते हैं पैलेस में। जो क्वीन है वो उससे इम्प्रेस होती है गलीवर से, लेकिन किंग को गलीवर पसंद नहीं आता। गलीवर के लिए एक डॉल्स हाउस तैयार किया जाता है जिसमें उसकी रिहाइश होती है। जो किंग है वो गलीवर को यानी ह्यूमन बीइंग्स को और गलीवर को उनसे नफरत करता है, क्योंकि वो बताता है गलीवर कि हमारे मुल्क में यही होता है, करप्शन, ये सारा कुछ, तो उसे नफरत हो जाती है उनसे। ब्रॉबडिंग-नैग के यानी उस जिस सेकंड वॉयज में जहाँ पे जाता है जिस मुल्क में, वहां पे सिलेक्टेड बुक्स होती हैं। एक बर्ड जो है वो गलीवर को उठा के चला जाता है उस घर समेत और उसे ड्रॉप कर देता है पानी पे। थर्ड वॉयज में गलीवर गोज टू लेप्यूटा जो कि एक फ्लाइंग आइलैंड है। वहां पे फ्लैपर्स होते हैं। फ्लैपर्स का काम ये होता है कि जब वहां पे लोग बात करते करते ख्यालों में खो जाते हैं तो फ्लैपर्स उन्हें थप्पड़ मार के वापस लेके आते हैं। लेप्यूटा में एक ट्यूटर अरेंज किया जाता है गलीवर को लैंग्वेज सिखाने के लिए। गलीवर 3 मंथ्स तक लेप्यूटा में रहता है। लेप्यूटा एक फ्लाइंग आइलैंड है जो कि एक मैग्नेटिक फोर्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। पीपल ऑफ लेप्यूटा आर obsessed with geometry, music, astronomy। वो कहीं भी जाते हैं उससे पहले 3 घंटे का ऑर्केस्ट्रा चलता है। उनके खाना पीना जो है वो मैथमेटिकल जो शेप्स में कट के आता है। एस्ट्रोनॉमी के वो बहुत ज्यादा शौकीन है। लेप्यूटा इज अ फ्लाइंग आइलैंड ओवर बैलनीबरी। नीचे वाले आइलैंड को बैलनीबरी कहा जाता है, ऊपर वाले को लेप्यूटा। गलीवर गोज टू स्ट्रालबर्ग्स जो कि लग्नैग में होते हैं, तो उनकी खसूसियत ये होती है वो सारे इमोर्टल्स होते हैं। गलीवर्स बालीबरी में जाता है और वहां पे एकेडमीज ऑफ प्रोजेक्टर्स देखता है जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये सटायर है, इंटेलेक्चुअल सटायर के लोग जो हैं बेसिकली दे आर पेइंग अटेंशन टू वेरी पेटी एंड यूजलेस साइंटिफिक इन्वेंशंस। सो केव एट द सेंटर ऑफ आइलैंड ऑफ लेप्यूटा वो सिर्फ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए होती है, जहां वो बैठ के सितारे गिनते रहते हैं। गलीवर को ग्लब्ड अप ड्रिप पे शेड्स ऑफ डेड मिलते हैं, यानी भूतों को वो मिलता है। उधर बहुत सारे गोस्ट्स आते हैं जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है, उसमें अरिस्टोटल भी आता है बाद में। तो ये सारे, और हैनिबल भी आता है, ये सारे आके गलीवर को बताते हैं कि हमारे बारे में जो बातें हैं वो झूठ है। सो दिस इज एन इंटेलेक्चुअल सटायर कि हिस्ट्री इज डिस्टॉर्टेड। अकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट्स सिंबलाइज करती है यूजलेस इन्वेंशंस को, कि एक बंदा पता कितने सालों से बैठा होता है कि क्यूकम्बर के अंदर से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर ले। एक बैठा होता है कि हवा को सेव कर लिया जाए और बाद में ठंडा करके यूज किया जाए। मार्बल को सॉफ्ट कर लिया जाए पिलोस की तरह। सो ये सारे यूजलेस इन्वेंशंस हैं।
सो गोस्ट जो जो जिनको ये मिलता है उसके बाद वहां इसको पता लगता है कि हिस्ट्री खराब है, फॉल्टी है, फिलोसफीज फॉल्टी हैं और बुक्स ऑथेंटिक नॉलेज नहीं देती। 3 वीक्स लगे वहां से गलीवर को जापान जाने में, और इंग्लैंड आने के बाद एडवेंचर नामी शिप पे he goes to his fourth and last voyage which is to the country of Vihinims। याहू और लिलीपुट ये 2 टर्म्स हैं जो कि स्विफ्ट ने बनाई और टर्म्स के अलावा भी, तो ये 2 टर्म्स उसकी इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा बन गई। गलीवर 5 नवंबर 1715 में वीहिनिम्स के पास इंग्लैंड वापस आता है। वीहिनिम्स में वो देखते हैं कि जो फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर नॉट सीन इन वीहिनिम्स। सो लाइंग और फॉल्सहुड वो उसमें नहीं देखता, वो झूठ नहीं बोलते। याहूज एक और क्रिएचर होती है सेम आइलैंड में, वीहिनिम्स की अपोजिट, जो कि कनिंग होते हैं, रिवेंजफुल होते हैं, कॉवर्ड होते हैं। गलीवर की पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट ट्रेट ये है कि वो एंथुजियास्टिक होता है, क्यूरियस होता है। गलीवर को जर्मन लैंग्वेज नहीं बोलनी आती थी, बाकी सारी आती थी। सो प्राइमरी जो इंजन था गलीवर ट्रेवल का, दैट वाज हिज इंजन, दैट वाज कस्टम्स एंड लैंग्वेजेस दैट ही लर्नड। वीहिनिम्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं परफेक्शन ऑफ नेचर को, कि नेचर कितनी परफेक्ट है, और वो ये भी रिप्रेजेंट करवा रहा है बेसिकली स्विफ्ट के जानवर इंसान से बेहतर है, या वीहिनिम्स आर रिप्रेजेंटिंग हाउ ह्यूमन बीइंग्स शुड बी एंड याहूज रिप्रेजेंट हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। तो गलीवर जो है 10 वीक्स लगते हैं उसे उनकी लैंग्वेज सीखने में। गलीवर जब वहां पे जाता है तो वीहिनिम्स याहूज उस पर अटैक करते हैं, तो एक घोड़ा उसको बचाता है। सो वीहिनिम्स आर बेसिकली हॉर्सेस। याहूज आर एज ह्यूमन बीइंग्स आर द वे दे बिहेव, एंड वीहिनिम्स आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स शुड बी। याहूज लाइक शाइनिंग स्टोन, जिस इंसान को ज्वेलरी से प्यार है, इस याहूज को शाइनिंग स्टोन्स पसंद होते हैं। गलीवर wants to stay in the country of Vihinims, he doesn't want to come back। गलीवर को इस वॉयज के एंड पे आके, क्योंकि शुरू से वो कन्विंस होता है कि इंसान बहुत अच्छे हैं, सेकंड वॉयज में वो किंग से उलझता रहता है कि इंसान अच्छे हैं, किंग हेट करता है ह्यूमैनिटी से। फोर्थ वॉयज में आके इसको आइडिया हो जाता है कि इंसान जो है दे आर वर्स्ट स्पीशीज, सबसे फजूल बदतरीन स्पीशीज है। हॉर्सेस जो है वो गलीवर को एक याहूज समझते हैं जिसके अंदर सेंस है और ड्रेसिंग है। याहूज वैसे कपड़े नहीं पहनते, उनमें सेंस नहीं है। सो दे कंसिडर गलीवर अ याहू विद सेंस एंड ड्रेस। गलीवर इज forcibly sent back because they believe, the horses believe that he is not among us। ये जो भी कर ले ये हमारा हिस्सा नहीं बन सकता। So Gulliver when comes home, he does not talk to his family, rather he spends time with 2 horses that he buys। So Gulliver Travel is a fancy tale for kids। बच्चों के लिए एक बड़ी एक imaginative story है। Gulliver was a misanthropist, but Swift was not। So Swift is alleged to be misanthropist, but it is his character Gulliver who is misanthropist, not the writer himself। So these was the MCQs from Gulliver's Travels। They're already available on my channel without these interpretations।